ओके बेटा, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। ध्यान से, अब बस अब आ जाना चाहिए सब कुछ जो हमने स्टेट्स ऑफ मैटर में किया हुआ है बेटा। जो चीज़ें हमने कवर की हैं वो हमें आ जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाए। मिथाइल अमाइन एंड हाइड्रोजन क्लोराइड आर बोथ गैसेस। ये हमने क्वेश्चन किया हुआ है सॉल्व। यस, मिथाइल अमाइन एंड हाइड्रोजन क्लोराइड बोथ आर गैसेस विच आर soluble in water. The gases react together to form a white solid methyl ammonium chloride. To form a white solid methyl ammonium chloride, in an experiment demonstrates the rate of diffusion of the following operators is set up. Where will the white solid form? तो बेटा ये हमारी डिस्कशन हुई है कि व्हाइट सॉलिड कहाँ फॉर्म होगा। गुड अयान बेटा, वालेकुम सलाम नौमान बेटा, गुड रानिया बेटा। कहाँ बनेगा व्हाइट सॉलिड? सी पे। सो वी नो दैट मिथाइल अमाइन हैज अ मास ऑफ 31. Hydrochloric acid has a mass of 36.5. 36.5. So methyl amine will diffuse faster because of its lower mass. Methylamine will diffuse faster because of its lower mass as compared to hydrochloric acid. तो methylamine ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी एज कंपेयर टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लेकिन फार राइट नहीं होगा, ज्यादा राइट पे नहीं होगा, स्लाइटली टू द राइट होगा। Why we are saying slightly to the right? Because the difference in mass is very small. The difference is very less. That's why we say कि slightly to the right. That's why we say slightly to the right. That's why we say slightly to the right. क्योंकि मैथ्स में डिफरेंस क्या है? थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर मैथ में ज्यादा डिफरेंस होगा देन ज्यादा राइट पे होता, फिर डी आंसर भी हो सकता था। बट द मैसेज दे आर not far away from one another. The difference is very small. That's why it should be slightly to the right side. Moving on. ये तो हमने पहले किया हुआ था। Question number 2. Read the question carefully, beta. Those who are online, and then answer. जी बेटा। In which conversion do water molecules lose speed? स्पीड कम होगी। स्पीड कम कब होती है? कहां से कहां जाते हुए स्पीड कम हो जाती है? सॉलिड टू लिक्विड जाते हुए स्पीड कम होती है, ज्यादा होती है? ज्यादा होती है। लिक्विड से गैस जाते हुए क्या होती है? ज्यादा, बिकॉज गैस पार्टिकल दे हैव द हाईएस्ट स्पीड, एंड व्हेन यू गो बैक फ्रॉम गैस टू लिक्विड एंड देन लिक्विड टू सॉलिड, द पार्टिकल दे स्लो डाउन, दे लूज एनर्जी। सो बेटा किस स्टेट में एनर्जी कम हो रही है, स्पीड कम हो रही है? ए ऑप्शन देखें, आइस टू वाटर, solid to liquid. No, the particles they gain energy when you go from solid to liquid. This is not the right answer. Ice to steam. Again, you are going from solid to gaseous state. The particles they gain energy. Not right again. We want the particles to lose energy. Steam to ice. यस, स्टीम गैस होती है, आइस सॉलिड है। अगर आप सॉलिड में आ गए गैस से, गैस पार्टिकल्स दे हैव द हाईएस्ट एनर्जी, सॉलिड पार्टिकल्स दे हैव द लोएस्ट एनर्जी। It means that when you will convert your substance from gaseous to solid state, the particles will lose energy, beta. The particles they will lose energy. The particles they will lose energy. Very good, those who are saying C. तो बेटा ये आपको बात पहले से पता है। सॉलिड पार्टिकल्स लोवेस्ट एनर्जी होती है सॉलिड पार्टिकल्स की। गैसियस पार्टिकल्स, गैसेस हाई एनर्जी, gases high energy, solid they have the lowest energy, and gases they have the highest energy, बीच में आ जाते हैं liquids. So yes, C is the right answer. Very good, those who are saying C. Done? Any problem with this? जी बेटा हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे आए बेटा। ध्यान से रीड क्वेश्चन, ध्यान से किया करें, उसके अकॉर्डिंगली फिर आंसर करें बेटा। और ऑनलाइन वाले बेटा प्लीज साथ से बताते रहा करें।
Okay, question is, in a sample of air at 25 degrees Celsius, the molecules of oxygen, nitrogen, and carbon dioxide all move at different average speed. Which of the following lists the molecules in order of decreasing average speed? Which one of these three is the fastest and which one of these three is the slowest? बेटा कैसे कैसे निकालेंगे कौन फास्ट है कौन स्लो है? सी द मॉलिक्यूलर मास, सी द masses. ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2, नाइट्रोजन का फॉर्मूला होता है N2, कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2. कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2. सो बेटा सी द masses, सी द masses बेटा, सी द masses. देखिए किसका मास कम है किसका ज्यादा है. जिसका मास कम होगा इट विल डिफ्यूज फास्टर, जिसका मास ज्यादा होगा. आयान बेटा भी फॉर्मूला मेकिंग इसके बाद आ भी रही है. यस, masses निकालें, then compare the masses. The one with the lowest mass will diffuse faster and the one with the highest mass will diffuse slower. Okay, some are saying B, some are saying C, A, B and B. Yes, B है. Okay, let's see. What is the mass of oxygen? ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है बेटा? ऑक्सीजन का मास होता है एक एटम का 16 and there are two atoms. 16 into is 32. Nitrogen 14, 14 into 2 is 28 and carbon dioxide 14 plus 16 into 2 44. मैसेज निकालने आते हैं ना. अब देखिए किसका मास सबसे कम है, किसका मास सबसे कम है? नाइट्रोजन का. सो नाइट्रोजन विल डिफ्यूज फास्टर. और सबसे ज्यादा मास किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का. तो कार्बन डाइऑक्साइड विल हैव द स्लोवेस्ट, it will have the lowest average speed. Decreasing average speed जो होगी वो होगी हमारी नाइट्रोजन फास्टेस्ट. Then we will have oxygen. First पे ये आएगा, then second and then third. So yes, very good those who were saying B. B is the right answer. आगे चलें बेटा, निकाल लेंगे ना ये मैसेज कंपेयर करके. क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं बेटा. Which gas has the slowest rate of diffusion? Which gas has the slowest rate of diffusion? Slowest rate of diffusion किस गैस का है? अमोनिया, मीथेन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन. Again, you have to see their masses. You have to see their masses. The one with the highest mass will have the lowest rate of diffusion. C कह रहे हैं, B कह रहे हैं, कुछ लोग B कह रहे हैं. Yes बेटा, B, C, A, B. यस क्या है बेटा? मैसेज निकालें ना तब पता चलेगा, मैसेज निकालें तब पता चलेगा. ओके हाजर यू आर सेइंग सी. अब्दुल नूर यू आर सेइंग सी. सी है या बी है? सी के साथ जाएंगे. ओके. अमोनिया का मास कितना है? 17. वेरी गुड. मीथेन का मास कितना है? CH4 16. ऑक्सीजन का मास कितना है? 32. नाइट्रोजन कितना है? 28. यस. So now we can clearly see the one with the highest mass will have the slowest rate of diffusion. सबसे ज्यादा मास किसका? ऑक्सीजन का. ऑक्सीजन का सबसे स्लो मूवमेंट होगी out of these four. So yes, C is the right answer. Very good those who are saying C. C answer है हमारा. Done? Any problem with this? 5 पे आ जाए, 5 पे आ जाए बेटा. और साथ साथ लिख भी लिया करें मैसेज, साथ साथ लिखा करें बेटा. ओके अब ये जरा ध्यान से करना है बेटा. The table gives data about 4 substances. The table gives data about 4 substances. Which substance has particles in disorderly arrangement? Which substance has particles in disorderly arrangement? Which substance has particles in disorderly arrangement? मुझे बताएं किन particles की arrangement disorderly होती है? Gaseous particles. Liquids की भी कोई fixed arrangement नहीं होती, but gaseous they have very disorderly arrangement. So either it can be a liquid or the chances are कि it should be a gas. तो हमने ऐसा देखना है रूम टेम्परेचर पे जो गैशियस स्टेट में हो.
रूम टेम्परेचर कितना होता है, पता है कितना होता है रूम टेम्परेचर? 25-26 डिग्री सेल्सियस। यस, यू आर राइट। सो इस टेम्परेचर पे दैट थिंग शुड बी अ गैस, दैट थिंग शुड बी अ गैस। विच थिंग इज अ गैस? गुड, वेरी गुड। क्या कह रहे हैं? कुछ लोग ए कह रहे हैं, कुछ लोग बी कह रहे हैं। ध्यान से देखें, स्पेशली दोज हु आर सेइंग बी। बी इज नॉट द राइट आंसर। गैशियस स्टेट में कौन है? एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर, ये नहीं गैशियस स्टेट में जा नहीं सकता, जा सकता है। रूम टेम्परेचर में कौन गैशियस स्टेट में है? दैट थिंग विल हैव डिसऑर्डरली अरेंजमेंट। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ऑप्शन डी। अब डी को इधर देखिए, ऑनलाइन में जरा देखें जो गलत आंसर करें। डी को देखें बेटा, मेल्ट कहां हो रहा है? 1610 पे जाके यह सब्सटेंस मेल्ट हो रहा है। 1610 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो रहा है। इससे पहले किस स्टेट में होगा? टेम्परेचर लोअर देन 1610 किस किस स्टेट में होगा? सॉलिड। इट इज मेल्टिंग एट 1610 ना। बिफोर 1610, बिफोर 1610 का क्या मतलब है? एट 1600, एट 1500, एट 14, एट 1300, 1200, 1100, 1000, 500, 400, 300, 100, 50, 26, जितने भी टेम्परेचर 1610 से कम है, 1610 पे जाके मेल्ट हो रहा है, उससे पहले क्या है वो? सॉलिड है। तो बेटा ये कहां से रूम टेम्परेचर पे गैस होगा? दिस इज नॉट द राइट आंसर, बिकॉज एट रूम टेम्परेचर इट इज इन सॉलिड स्टेट। 100 पे सॉलिड, 200 पे सॉलिड, 300 सॉलिड, 1000 सॉलिड, 1500 सॉलिड, 1610 पे जाके मेल्ट होगा, लिक्विड में आ जाएगा। उसके बाद 22-30 पे जाके बॉयल होगा। तो बेटा रूम टेम्परेचर पे तो सॉलिड। डिसऑर्डरली मीन है बेटा कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। डिसऑर्डरली का ये मतलब कोई ऑर्डरली अरेंजमेंट नहीं है, फिक्स पैटर्न नहीं है, लैटिस स्ट्रक्चर नहीं है आपका। सी ऑप्शन पे आए। दिस सब्सटेंस इज मेल्टिंग एट 750। दिस सब्सटेंस इज मेल्टिंग एट 750। सो बिफोर 750 क्या है? बिफोर 750 क्या है? Before 750, it is in solid state. So at room temperature, this substance is in solid state. तो बेटा ये ऑप्शन भी तो नहीं है, क्योंकि 750 से पहले 26 पे क्या होगा, 100 पे क्या होगा, रूम टेम्परेचर पे क्या होगा? इट विल बी इन सॉलिड स्टेट, एंड सॉलिड दे हैव ऑर्डरली अरेंजमेंट, दे हैव फिक्स अरेंजमेंट। बी ऑप्शन पे आए, बी ऑप्शन पे आए। At 120, this substance is melting. This substance is melting at 120 degree. Before 120, it will be in, at 110 it will be in 100 पे, 90 पे, 50 पे, 26 पे। तो 26 रूम टेम्परेचर है, सॉलिड है बेटा। तो कहां से डिसऑर्डरली अरेंजमेंट होगी? गैशियस होना चाहिए। अब ऑप्शन ए देखे बेटा, -114 पे मेल्ट कर चुका है और -80 डिग्री पे बॉयल भी हो चुका है। अब -80 से जो हायर टेम्परेचर है उस पे ये किस स्टेट में होगा? गैशियस स्टेट में। -80 से बड़ा नंबर कोई मुझे बताएं। माइनस, माइनस में बताएं मुझे। मैं जरा चेक करना चाह रहा हूँ कि मैथ्स कितना अच्छा है। -80 से बड़ा नंबर बताएं इन नेगेटिव। माइनस, -70, -60, -50, -40, -30, -20, -10, 0, 10, 20, 26। -80 पे बेटा ये बॉयल कर चुका है। एट अ टेम्परेचर हायर देन -80 इट विल बी इन gaseous state, so it will have a disorderly arrangement. So A is your answer beta, A is your answer. So बेटा disorderly arrangement होती है अब्दुल्ला बेटा गैशियस स्टेट में। गैशियस स्टेट में तो आपने देखना है इनमें से कौन रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर की बात हो रही है एट 26, which substance at room temperature, which substance at room temperature is in gaseous state? So हमने देखा सी तो जाके बेटा 1610, 1600
पे जाके कहीं मेल्ट हो रहा है, तो 1600 से पहले किस स्टेट में होगा? सॉलिड में। तो रूम टेम्परेचर में भी किस स्टेट, रूम टेम्परेचर 26 होता है, उसमें भी किस स्टेट में होगा? सॉलिड। सिमिलरली ये 750 पे जाके मेल्ट हो रहा है, बिफोर 750 इट विल बी इन सॉलिड, क्योंकि 26 इससे पहले आता है सॉलिड में। एंड 120 के नीचे भी कितना है सॉलिड में? अब ये बेटा ए ऑप्शन इस वजह सही था अब्दुल्ला बेटा, ये -114 पे मेल्ट हो गया, -80 भी बॉयल भी हो गया। अब -80 बड़ा है या या +26? ऑब्वियसली +26। सो -80 से हायर टेम्परेचर जितने भी हैं, -70, -60, -50, -30, -10, 0, 10, 20, उन सब में ये किस स्टेट पे होगा? गैशियस में। तो रूम टेम्परेचर पे किस स्टेट में होगा? गैशियस में। सो इट विल हैव डिसऑर्डरली अरेंजमेंट। सो ए आंसर है बेटा, जो रूम टेम्परेचर पे गैस है इट विल हैव डिसऑर्डरली अरेंजमेंट। हो गया बेटा ये? ठीक है, तो ध्यान से 6 पे आए बेटा, 6 पे आए। विच प्रॉपर्टी ऑफ गैस इफेक्ट्स द रेट एट विच इट स्प्रेड्स थ्रू आउट अ लैब? थ्रू आउट द लैब, ऑब्वियसली थ्रू आउट स्प्रेड करने में कौन हेल्प करता है बेटा? बॉइलिंग पॉइंट तो हमने कभी बात नहीं की। थ्रू आउट द लैब स्प्रेड करने का मतलब है द थिंग इज डिफ्यूजिंग। सो बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंडेंट नहीं है, रिएक्टिविटी पे डिपेंडेंट नहीं है, सॉलेबिलिटी पे डिपेंडेंट नहीं है। योर डिफ्यूजन डिपेंड्स ऑन and temperature and molecular mass. So answer should be your molecular mass. B is the right answer. So very good those who are saying B. ठीक है, तो वी नो दैट डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं, स्प्रेड करने का मतलब ये है द थिंग इज डिफ्यूजिंग, एंड डिफ्यूजन इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर एंड द मॉलिक्यूलर मास। इन दो चीजों पे डिपेंडेंट है बेटा, टेम्परेचर एंड मॉलिक्यूलर मास, टेम्परेचर एंड मॉलिक्यूलर मास। डन। 7 पे आ जाए बेटा, देखिए ध्यान से और बताएं कि क्या बनता है। नहीं रायमा बेटा, डिफ्यूजन नहीं डिपेंड करती, डिफ्यूजन डिपेंड करती है टेम्परेचर और मॉलिक्यूलर मास पे। यस। Which diagram represent the arrangement of particles in gas? We know that they should be spread out. They don't have a specific arrangement. They are not fixed. They can move freely. They should have spaces between them. A is your answer. So very straightforward. Very straightforward. Good Aisha Hajra beta. Question number 8. See question number 8. देखिए और बताएं क्या बन रहा है। Nitrogen dioxide is a dark brown gas and is more dense than air. A gas jar containing nitrogen dioxide is sealed with a glass plate and is then inverted on top of a gas jar containing air. Same experiment that we saw, but we had bromine. वो nitrogen dioxide की बात कर रहे हैं. The process is same. We have a jar in which we have nitrogen dioxide, and we have placed another jar upside down on the first, which has air in it. The glass plate is removed. ये remove कर दी बीच में से. Which of the following correctly describes the colors inside the gas jars after a long period of time? बहुत देर बाद देखा क्या होगा? बहुत देर बाद ए होगा. ए क्या है? Yes. Initially it was dark brown. So when it will diffuse from the lower jar to the upper jar and air will diffuse from the upper jar to the lower jar, they will mix. कलर थोड़ा सा लेस इंटेंस हो जाएगा, इंटेंसिटी कम हो जाएगी. सो इनिशियली इट वाज डार्क ब्राउन. अब वो डार्क ब्राउन तो नहीं रहेगा, दोनों जार्स में जो कलर आएगा वो सेम सेम हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन दोनों की सेम सेम हो जाएगी. सो बोथ जार्स विल हैव द सेम कलर, ब्राउन एंड ब्राउन. So yes, A is the right answer. Very good. A is the right answer.
ओके, क्वेश्चन नंबर 9 पे आए बेटा। क्वेश्चन नंबर 9, an inflated balloon goes down because gas molecules can diffuse through rubber। ये बात समझ आती है क्या कह रहे हैं? An inflated balloon goes down because gas molecules can diffuse through rubber। होता है ना ऐसे, कोई आपके पास, आपने गैस फिल किया बलून में, वो ऊपर लाइट है, ऊपर था, थोड़ी देर बाद वो नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे वो नीचे क्यों आ रहा है? गैस में से डिफ्यूज हो रही है इब्राहिम बेटा, गैस निकलना शुरू, गैस बाहर जा रही है बलून से निकल के। So four balloons are filled with different gases at the same temperature and pressure. Which balloon would go down quickest? Which balloon will go down quickest? सबसे ज्यादा जल्दी कौन नीचे जाएगा? ओके, वेरी गुड। कुछ लोग ए कह रहे हैं, कुछ लोग बी कह रहे हैं। जरा ध्यान से क्वेश्चन रीड करें, इसी वजह से मैंने फोकस किया था बेटा फर्स्ट लाइन पे। फर्स्ट लाइन को देखें बेटा, जरा फर्स्ट लाइन दोबारा से रीड करें और देखें जरा क्या है फर्स्ट लाइन में, क्या लिखा हुआ है। जो लोग ए आंसर कर रहे हैं उन्होंने क्वेश्चन सही ध्यान से नहीं पढ़ा। आयान बेटा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, इसी वजह से पूरी लाइन लिखी है, मुझे पता था कि आपको ये बात समझ नहीं आएगी। वो ये वाली लाइन जरा रीड करें दोबारा से। एन इन्फ्लेटेड बलून गोज डाउन, नीचे क्यों आएगा? रीजन बता रहा है आपको, आपने इस रीजन की बेस पे आंसर करना है। An inflated balloon goes down because gas molecules can diffuse through rubber। किसकी वजह से नीचे आ रहा है? पार्टिकल डिफ्यूज हो जाते हैं। सो जिसके पार्टिकल जल्दी डिफ्यूज होंगे वो जल्दी नीचे आएगा, जिसमें से गैस जल्दी निकल जाएगी वो जल्दी नीचे आएगा। तो गैस किस में से जल्दी निकलेगी? जिसका मास कम होगा, जिसका मास कम होगा, जिसका मास कम होगा, उसमें से गैस जल्दी डिफ्यूज कर जाएगी, बाहर निकल जाएगी, और आपके पास द बलून विल गो डाउन। कार्बन डाइऑक्साइड का मास 44, मीथेन का मास, नाइट्रोजन का मास, ऑक्सीजन का मास। So you know how to find out these masses. You know how to find out these masses. So beta, the mass, the lowest mass is the mass of methane. B is the right answer. B is the right answer. Mass सबसे कम है, डिफ्यूजन रेट क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। दिस गैस विल डिफ्यूज द फास्टेस्ट। और जब निकल जाएगी क्या होगा? कहाँ जाएगा निकलने के बाद? नीचे ही आएगा ना। सो बेटा आप लोग जो आंसर ए कर रहे थे ना, वो कह रहे थे ये भारी है, 44 मास है, इट इज हैवी, तो जल्दी नीचे आएगा। उसने ये कहा ही नहीं है इस बेसिस पे आप आंसर करें कि जो हैवी है वो जल्दी नीचे आएगा। उसने ऊपर तभी तो बेटा आपको बताया कि बलून गोज डाउन किस रीजन की वजह से? बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। तो आपने क्यों ये सेंस बना ली इसकी कि जो हैवी है वो जल्दी नीचे आएगा, जब वो आपको गाइड कर रहा है? या हो ना, उसने ओपन एंड क्वेश्चन छोड़ा हो, फिर आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। जब आपको गाइड कर रहा है कि किस बेसिस पे आपने आंसर देना है, कौन जल्दी नीचे आएगा, जिसमें से डिफ्यूजन जल्दी होगी, तो किस में डिफ्यूजन जल्दी होगी? इसका मैथ सबसे कम है। सो ए इज नॉट द राइट आंसर, दोज हु आर सेइंग ए। तो काइंडली इस बेसिस पे आंसर नहीं करना हैवी है या लाइट है। आपने देखना है जिसमें से गैस जल्दी निकलेगी वो जल्दी नीचे आ जाएगा, जो टाइम लेगा बेटा। यस यस अब्दुल्ला बेटा, आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तो स्प्रेड हो जाएगी ना। फिर आए बेटा कह सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो आपको प्रॉपर गाइड करेगा किस बेसिस पे हम आंसर कर रहे हैं। हो गया? ये कर लेंगे आंसर। तो बेटा थोड़ा दिमाग लगाया कर, इसी वजह से क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर पे जंप करना शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन ध्यान से रीड करके, हाईलाइट करके, अंडरलाइन करके चला करे बेटा। ना दी हो फिर ओपन एंड क्वेश्चन है, फिर दोनों ऑप्शन हो सकते थे। इसी वजह से वो आपको गाइड करेगा किस बेसिस पे आपने आंसर करना। ठीक है?
ऐसे ओपन एंड क्वेश्चन छोड़े कभी नहीं वो आपके लिए। डन बेटा, एनी प्रॉब्लम? हो जाएगा ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाए बेटा, थ्योरी क्वेश्चन नंबर 1। ओके जिमरान बेटा, थ्योरी क्वेश्चन नंबर 1। थ्योरी क्वेश्चन नंबर 1। Concentrated ammonia solution gives off ammonia gas. Concentrated ammonia solution gives off ammonia gas. Concentrated hydrochloric acid gives off hydrogen chloride gas. Ammonia and hydrogen chloride are both colorless gases. Ammonia reacts with hydrogen chloride to make the white solid ammonium chloride. Apparatus is set up as shown. On one side we have HCl. On one side we have HCl. On the other side we have ammonia. After 10 minutes, a white solid forms in the tube where the gases meet. Write the chemical equation for the reaction of ammonia with hydrogen chloride. बेटा मैंने आपको इक्वेशन लिखवाई थी और मैंने ये बात भी की थी, we will discuss this equation in the chapter called acid and bases. Because ammonia is a base, it reacts with HCl to form ammonium chloride. तो बेटा ammonia with HCl will form what? Ammonium chloride. ये लिख लें अभी अपने पास। गुड राहिम बेटा, गुड शहीर बेटा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन अभी याद नहीं भी है तो हम आगे जाके हमने पढ़नी भी है, लेकिन कोशिश करें अभी से याद हो जाए। आगे हम एसिड बेसिस में डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये अमोनिया जो होती है ना, ये क्या होती है? बेस होती है। ACl क्या होता है? एसिड। एसिड प्लस बेस विल फॉर्म अमोनियम सॉल्ट। वैसे जनरली एसिड प्लस बेस सॉल्ट वाटर बनता है, लेकिन अमोनिया स्पेशल है, इट फॉर्म्स अमोनियम सॉल्ट। नेम द प्रोसेस बाय विच अमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड गैसेस मूव इन द ट्यूब। Name the process by which ammonia and hydrogen chloride gases move in the tube. Yes, diffusion. They will diffuse. Ammonia will diffuse from left to right, and HCl will diffuse from right to left. Okay, next is beta. At which point A, B, C, or D does the white solid form? Explain why the white solid forms at that point. जी बेटा, white solid कहाँ बनेगा? Yes, those who are online बेटा. Yes, रायमा, निमरा, रानिया बेटा, फातिमा बेटा. Yes, फातिमा आपकी बात कर रहा हूँ. So व्हाइट रिंग कहाँ बनेगा? व्हाइट रिंग कहाँ बनेगा? ए पे ammonia is on this side and HCl is on the left side. Yes, so HCl has a mass of 36.5, ammonia has a mass of 17. So obviously बात है बेटा, ammonia has lower mass, it will diffuse faster. ज़्यादा fast move करेगी, HCl will diffuse slower, and they will not going to meet in the middle because ammonia will diffuse faster, so they will meet to the left. Left side पे मिलेंगे where the white ring will be formed. So at point A, साथ एक्सप्लेनेशन भी बेटा इसकी देनी है, साथ हमने इसे एक्सप्लेन भी करना है। लिखें एक्सप्लेनेशन इसकी। क्या लिखेंगे? जो अभी हमने बात की कि ammonia will diffuse faster because of its lower molecular mass. Ammonia will diffuse faster because of its lower molecular mass as compared to HCl. So ammonia will cover more distance. So ammonia will cover more distance. ठीक हो गया बेटा?
यस, मेंशन करने की जरूरत नहीं, बेशक कर दे, लेकिन जरूरत नहीं है, बस आप इतना बता देंगे कि कौन फास्ट कर रहा है और किस बेसिस पे कर रहा है, 2 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। ओके, फोर्थ पार्ट बेटा, द एक्सपेरिमेंट वॉज रिपीटेड एट अ हायर टेम्परेचर, सेम एक्सपेरिमेंट इज नाउ रिपीटेड एट अ हायर टेम्परेचर, predict how the results of the experiment would be different, explain your answer. The experiment was repeated at a higher temperature, predict how the results of the experiment would be different, difference क्या आएगा experiment में, and explain your answer. Yes, क्या difference आएगा जी? कोई difference नहीं आएगा। and आपको नजर क्या आएगा, ऑब्जर्वेशन क्या बेटा हमारी, क्या ऑब्जर्व करेंगे हम बेटा? और कोई चीज नहीं आएगा सर, एक एक काम होगा, एक काम होगा, वो जो व्हाइट रिंग बनना था ना, वो जल्दी बनेगा, बिकॉज बोथ गैसेस विल मूव एट अ फास्टर रेट बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर। तो आपने बेटा ये बात मेंशन करनी है, द रिंग विल बी फॉर्म्ड एट ए बट एट अ फास्टर रेट बट इन लेस टाइम, एंड वाई आगे रीजन बतानी है, बिकॉज इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। सो बेटा आप लिखेंगे white solid will be formed at the same position A but in less time, because increase in temperature will increase the kinetic energy of particles, so they will move quicker. बेटा बेटा ये तो आपको ये गैस तो नहीं करना ना कि ये तो नहीं करेंगे ना, हमने गैस सिर्फ ये करना है कि लेफ्ट है या राइट है। बेसिकली अमोनिया का मास कम है, ज्यादा तेज मूव करेगी, ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। एसीएल का मास कम है, एसीएल का मास ज्यादा है तो स्लोअर डिफ्यूज करेगी। तो मिलना तो ए पे चाहिए ना, बाकी बी सी डी तो आउट हो गई, राइट पे तो कहीं नहीं मिलेगी ना, मिडल मिलेगा। ये तो हमें पता है कि इसका मास का फास्ट मूव करेगी, ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, तो इतना ही तो प्रेडिक्ट करना है हमने कि जिसका मास कम होगा दैट थिंग विल डिफ्यूज फास्टर, जिसका मास ज्यादा होगा दैट विल डिफ्यूज स्लोअर। बस आपने देखना राइट है या लेफ्ट बन रहा है हमारे पास। तो अमोनिया का मास कम है, फास्ट मूव करेगी, ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। एसीएल का मास बेटा बेटा यहाँ ये देखिए, अमोनिया राइट पे है ना, अमोनिया राइट पे है, नहीं अमोनिया राइट पे है ना, मिडल, ये बी तो मिडल बन रहा है, बी तो अराउंड मिडल बन रहा है बेटा। अमोनिया राइट पे है तो अमोनिया ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तब हम ए कह रहे हैं। अगर अमोनिया यहाँ पे होता है लेफ्ट साइड पे, तो फिर सी या डी में से कुछ होता। तो अमोनिया ज्यादा क्विकर मूव कर रही है। ये आंसर लिख लिया बेटा? एट हायर टेम्परेचर द व्हाइट सॉलिड विल फॉर्म एट अ हायर टेम्परेचर, the white solid will form at the same time, but it will be formed at a quicker rate in less time. Why? Because the particle they will have more kinetic energy, they will travel faster. तो जल्दी बन जाएगा, व्हाइट रिंग आपको जल्दी नजर आएगा। ओके नेक्स्ट पे आ जाए बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, कंपाउंड एक्स इज अ कलरलेस लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। Compound X is a colorless liquid at room temperature. A sample of pure X was slowly heated from -5 डिग्री सेल्सियस। तो आपके पास ये कौन सी कर्व नजर आ रही है बेटा? ये कौन सी कर्व है? कौन सी कर्व है? हीटिंग बोल रहे हैं ना मुंह से, हीटिंग कर्व, दिस इज अ हीटिंग कर्व, so which is above its boiling point temperature, so we are melting and boiling in our heating curve. Complete the equation for the equilibrium present in the region BC। B और C के बीच में, सबसे पहले मुझे बताएं B और C के बीच में क्या हो रहा है।
Yes, those who are online. What is going on between B and C? What is going on between B and C? जी बेटा क्या हो रहा है? मेल्टिंग हो रही है. बिटवीन बी एंड सी वी हैव मेल्टिंग. और जब बेटा मेल्टिंग होती है इस पॉइंट पे क्या एग्जिस्ट कर रहा है? सॉलिड है या लिक्विड है? ड्यूरिंग मेल्टिंग विच स्टेट इज प्रेजेंट, सॉलिड और लिक्विड? बोथ. बोथ. सॉलिड एंड लिक्विड. मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड. मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इज प्रेजेंट. तो बेटा जी वो कह रहा है सॉलिड भी है और क्या है, लिक्विड भी होगा बिटवीन बी एंड सी. तो ये उसने एक्स कोई सब्सटेंस है, एक्स का नाम नहीं बताया, फॉर्मूला नहीं बताया, साथ एस लिखा हुआ है. एस मीन सॉलिड. एंड सॉलिड भी एग्जिस्ट कर रहा है ड्यूरिंग दिस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, और लिक्विड भी एग्जिस्ट कर रहा है बिटवीन. तो आपने क्या लिखना है? एक्स और साथ ब्रैकेट में एल लिख देना है विच रिप्रेजेंट्स द लिक्विड. बोथ एग्जिस्ट. तो आपने भी उसने एक सॉलिड बताया, आप लिक्विड बता दें, बात खत्म. ही इज सेइंग व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस? बेटा क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है? मेल्टिंग पॉइंट है. दिस सिग्निफिकेंस ऑफ T डिग्री इज इट्स अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस. मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस. सब्सटेंस कौन सा है हमारे पास? सब्सटेंस X. melting point of substance X. It is the melting point of substance X. And you know during melting क्या होता है? टेम्परेचर चेंज होता है नहीं होता? ड्यूरिंग मेल्टिंग टेम्परेचर चेंज होता है नहीं होता? नहीं होता. What is the physical state of compound X in the region EF? What is the physical state of compound X in the region EF? यहां पे बेटा यहां पे सॉलिड था, मेल्ट हो गया, यहां पे लिक्विड आ गया, यहां पे बॉयल होगा, ई और एफ के बीच में क्या होगा? गैस होगा. So it will be in gaseous state. Compound X will be in gaseous state. Compound X will be in gaseous state. What would be the difference in the region BC if an impure sample of X had been used? कल भी हमने इस बात का आंसर किया था कि if we have an impure sample, what will happen? Melting point will decrease. You're not going to have a straight line. Melting point will decrease. It will not be at the same level. क्योंकि impure चीजों का melting point हो जाता है कम. मैंने आपको एग्जांपल दी थी, ice melts at 0. If you have pure ice, it melts at 0 degree. लेकिन अगर इम्प्योर होगी तो -1 -2 लोअर टेम्परेचर पे मेल्ट कर रही होती है. ये अभी हम आगे जाके एक्सपेरिमेंटल में बात भी करेंगे. So what would be the difference in the region BC if an impure sample of X had been used? Melting point of the substance X will decrease. डन बेटा, हो गया ये? एनी प्रॉब्लम विद दिस? क्वेश्चन नंबर MCQ नंबर 8 देख ले बेटा. क्वेश्चन पढ़ना सीखे बेटा. अब आप बेबीज वाली हरकतें नहीं करनी है, जो सिली मिस्टेक्स हम करते होते, बस डायरेक्ट ऑप्शन बस जल्दी से निकालने की तरह. एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए. An inflated balloon goes down because gas molecule can diffuse through the rubber. ये तो हमें बात पता है. आज जाना ना, वापसी पे जाते हुए एक गुब्बारा लेते हुए जाना, वो वाला जो उड़ता है, जिसका जो लेस डेंस होता है, जो लेस हीलियम बलून. यस, हीलियम बलून लेते हुए जाना. जरा थोड़ा अरसा उसे रखना अपने रूम में, देखना वो आराम आराम से कुछ दिनों बाद वो नीचे आता जाएगा. अब आपसे कोई पूछे वो क्यों नीचे आ रहा है,
हमने तो हीलियम डाली हुई थी, ऊपर था पहले, तो अब नीचे आना शुरू हो गया। बिकॉज द गैस विच इज प्रेजेंट इन द बलून इज डिफ्यूजिंग। क्योंकि रबर है, रबर में स्पेसेस भी होती है बीच में, हमें नजर नहीं आ रही बट देयर आर स्पेसेस। तो स्लोली स्लोली क्या कर रही है, गैस बाहर निकल रही है, डिफ्यूज कर रही है। थोड़ी देर बाद क्या होगा, नीचे आ जाए, आ जाते हैं नीचे। अब वो डिफ्यूजन अगर फास्ट होगी तो मे बी एक दिन के अंदर नीचे आ जाए। अगर वो डिफ्यूजन स्लो होगी, मे बी हफ्ते बाद नीचे आ जाके। सो बेटा यहाँ पे वही पूछ रहा है कि विच बलून वुड गो डाउन क्विकेस्ट। तो जिसमें से गैस जल्दी निकल जाएगी वो सबसे जल्दी नीचे आएगा। अब गैस किस में से जल्दी निकलेगी, डिफ्यूज किस में जल्दी करेगी, जिसका मास सबसे कम होगा उसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्ट होता है। किसका मास कम है, मीथेन का कम। तो मीथेन गैस जल्दी से रबर में से डिफ्यूज कर जाएगी, वो निकल गई गैस तो नीचे आ जाएगी। दैट्स इट। तो ये आंसर था बेटा हमारा। डन बेटा। इसमें उबैदा बेटा, इस वाले क्वेश्चन में ये वही वाला है। पहले हमारे पास डार्क ब्राउन था, इसमें पहले हमारे पास डार्क ब्राउन लिक्विड था, डार्क ब्राउन वेपर्स थे, इसमें एयर थी। ये बीच में से ग्लास स्लाइड रिमूव कर दी। अब क्या होगा, एयर डिफ्यूज करके ऊपर जाएगी, ऊपर से डार्क ब्राउन लिक्विड गैस नीचे आएगा, डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगी फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। थोड़ी देर बाद व्हेन यू विल ऑब्जर्व द जार्स, कौन सा कलर नजर आएगा, ऊपर वाले में और नीचे वाले में सेम कलर। क्योंकि ऊपर डार्क ब्राउन था, वो डार्क ब्राउन आधा ऊपर से नीचे आ चुका होगा, नीचे से एयर ऊपर जा चुकी होगी, मिक्स हो गए होंगे। तो दोनों जार्स में सेम कलर होगा। वो क्या कलर होगा बेटा, ब्राउन ब्राउन। डार्क ब्राउन नहीं रहेगा क्योंकि डार्क ब्राउन तो पहले था, वो डिफ्यूज करके नीचे आ गया। तो कलर जो है वो आपका, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। मोलर मास जनरल वर्ड होता है नोमान बेटा। मोलर मास में मॉलिक्यूलर भी आता है, फॉर्मूला भी आता है, एटॉमिक भी आता है, सब मैसेज आते हैं। मॉलिक्यूलर मास इज स्पेसिफिक फॉर मॉलिक्यूल्स। डन। ओके बेटा, एक होमवर्क शीट मिल रही है आपको, एक होमवर्क शीट मिल रही है आपको, ऑनलाइन वालों के साथ बेटा ग्रुप में शेयर हो जाएगी। काइंडली मुझे सॉल्व करके कल आपने सबमिट करवानी है। स्टेट्स ऑफ मैटर की वर्कशीट, स्टेट्स ऑफ मैटर की वर्कशीट अभी आपको मिल जाएगी। आप ऑनलाइन वालों को बेटा ग्रुप में मिल जाएगी, और आप लोगों को भी मिल जाएगी। काइंडली कल की क्लास से पहले पहले सबमिट करवानी है। अगर बेटा नहीं करवाएंगे, आपको जितना मैंने बस फेवर करना था कर लिया है, अब इसके बाद से आप क्लास में नहीं आएंगे। ठीक है, तो बस बेटा इतना ही मजाक हो सकता है आपके साथ। अब सीरियस काम है, टाइम हमारे पास कम है। ग्रेड अगर आपने लेना है तो फिर आपको सीरियस होना पड़ेगा। आप मुझे बता दें कि मुझे CDC ऊपर ग्रेड नहीं चाहिए, फिर मैं आपको तंग भी नहीं करूंगा। जब मैंने फर्स्ट डे पूछा था किसे A चाहिए, तो फिर सारों ने हाथ उस वक्त खड़े किए हुए होते। किसने काम करना है वो वहां पे कोई भी हाथ नहीं खड़ा करेगा। तो बेटा ये इस तरह कोई नहीं आके आपको दे के जाएगा, यू हैव टू पुट एन एफर्ट फॉर इट। तो एफर्ट बेटा पुट इन करनी पड़ेगी, एंड फॉर दैट कंसिस्टेंसी इज रिक्वायर्ड। तो डेली बेसिस पे आपको काम करना पड़ेगा, होमवर्क करना पड़ेगा, टॉपिकल्स करने पड़ेंगे, रिवाइज करना पड़ेगा, याद करनी पड़ेंगी चीजें। तो काइंडली बेटा, ये अभी आपको शीट मिल जाती है, इसे सॉल्व करें कल क्लास से पहले। ठीक है, मेरे पास कोई लिस्ट ना आए बेटा, मैं क्लास में इंटरव्यू नहीं होने दूंगा। इब्राहिम ये नोट कर लेना है। एंड दोज हु आर ऑनलाइन, यू विल गेट द वर्कशीट इन द ग्रुप बेटा। विच वन अलीजे बेटा, कल शहीद बेटा। ओके बेटा, केमिस्ट्री वाले